Remember that time when you woke up at 5 a.m. just to complete the last chapter of accounts? The day when you revised law provision for 10 times? You sacrificed, you worked really hard. For what? For your dreams to come true, to pass your CA exams. But now what you are doing? When exams are just around the corner in few days, you are panicking. You are scared, you are tired, you want to give up. You want to give up at this point of time, seriously. All the practice, all the revision papers, all the lectures, all the questions that you have solved, you want that thing to go in waste. Why? Just because you don't want to handle this pressure. Just because you are scared that what if you failed? But if you don't give your exams, what will be the result? Will you pass? No. And now, right before the exams, you feel like all the sacrifices, all the preparation is zero. You have not done anything. My friend, that is not possible. Every hour, every freaking minute that you gave for this preparation will combine and give you your result. It will all accumulate. Nothing is going into waste. Don't, pressurize yourself at this moment. Don't scare yourself. It is your mind that is playing all these games with you. Do you also feel that whenever you pick up the phone, whenever you see Telegram or YouTube, like there are thousands of things that comes to your mind, that I want to do this, I want to do that, I have this chapter pending, this provision pending, these questions pending? Just stop. You don't have to do everything. You don't have to solve thousands of questions of one chapter. You don't have to see all the videos that are available on YouTube. Those videos target different types of student. You just want to focus on your preparation. If you have done everything, then no video will help you. You don't need a video, guys. You don't need a video, my friend. You just need self-study. This point is very crucial. It is the most crucial period for self-study. Videos will help you only to revise better, but you have to study by yourself at the end of the day. All the students that pass, that score exemption, that get rank in these exams, they don't depend themselves on some lectures or on some revision videos. The rank, the exemption, the successful in their mark sheet is because they did one thing: self-study. Self-study is the only way that will pass you. Don't worry. Just take a deep breath. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, and this video is especially for all the CA Foundation and Inter student who feel like they're forgetting everything that they have learned so far. So believe me, this is not something new. Okay? It is a very normal feeling. Everyone feels this, but this is nothing other than the exam pressure. You all feel this because of the pressure of the exams. I know you remember everything. You will know soon, okay? When you sit down to write your exam, every adjustment, every question will come up, you will come up with the answer. Okay? Controlling this pressure is as important as covering your syllabus, and it is as important as studying. So in this video, I will try to give you 3 to 4 practical ways, okay? Because I only believe in giving you solution to your problems. I am not here to waste your time or add, problems on problems. I will give you practical solution, practical tips, exam friendly tips that you must follow before going into the exam hall. Okay? These will help you before the exam and even during the exam. So listen carefully. Okay? I will not take much of your time. I will quickly try to explain you and calm you down थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि you will feel better and will be able to revise properly without any fear, without any guilt. ठीक है, so let's start. Step 1 is 30 minutes shutdown protocol. What does it mean? It means that the book that you are holding outside the exam center now, it is stealing your confidence. It tells that you are not confident enough to give your exams right now. Do you want to feel that? इफ़ नो देन जस्ट बिलीव मी, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आधे घंटे कुछ नया मत पढ़ना, ठीक है? उससे पहले पढ़ सकते हो, ठीक है? सुबह अगर तुम 5-6 बजे उठ रहे हो, पढ़ लो आराम से, 12 बजे तक पढ़ लो, 1 बजे तक पढ़ लो, बट एग्जाम में जाने से पहले ना अपनी बुक्स मत खोलना, ठीक है? क्योंकि तुम अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे, ठीक है? पेपर में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कुछ भी करोगे, उससे क्या होगा, तुम लाइक बेसिकली एग्जाम में जाने से पहले ही थक जाओगे. तो एग्जाम में जाने से पहले का जो टाइम होता है दैट इज़ वेरी क्रूशल. उसमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होता है, हमें रिजर्व करना है, क्योंकि अगले 3 घंटे तुम्हें इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहना है, ठीक है? तुम्हें लिखना है आंसर्स को, तुम्हें याद करना है, तुम्हें सब कुछ करना है. बेसिकली वो 3 घंटे तुम्हारे 2 से 3 महीने की मेहनत को बताएंगे. तो इसलिए
पेपर में जाने से पहले, ठीक है, ट्राई करना, अगर कुछ नहीं रहता, ठीक है, अगर कुछ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें फॉर्मूला वगैरह नहीं याद आ रहे, वो खोल के देख लो, बट कुछ नया मत उठाना आधे घंटे पहले। ऐसा नहीं बोल रही 1-2 दिन पहले से ही छोड़ दो, नहीं नहीं, अभी करो, ठीक है, 4 को भी करना, 5 को भी करना। एंड फाउंडेशन वाले भी सिर्फ पेपर से जाने से पहले 15-20 मिनट आराम से शांति से बैठो, ठीक है, कुछ खा लिया करो। मैं भी नहीं खा के जाती थी बिकॉज मेरे से खाया नहीं जाता था, बट अगर खा सकते हो ना तो थोड़ा बहुत खा लेना पेपर में जाने से पहले, नहीं तो बेफालतू में तुम्हारी थोड़ी एनर्जी, लाइक तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए और तुम ढंग से आंसर नहीं कर पाते। हो सकता है तुम्हारे सर्वर में दर्द होने लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसा मत करना, ठीक है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम लोग खुद के साथ कभी कभी ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू योर एग्जाम्स कुछ नया नहीं देखना, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बैठ जाओ एक जगह शांति से। एक तो एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुंचना, ठीक है, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले गेट्स खुलने के, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना तो अपनी आंखें बंद करो एंड तब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की कोशिश करो, चैप्टर वाइज कर लो, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे एडवांस अकाउंट का पेपर है इंटर वालों का, आंखें बंद करी, इंटरनल की जर्नल एंट्रीज माइंड में रिवाइज कर ली, अमालगमेशन माइंड में रिवाइज कर लिया, बाय बैक माइंड में रिवाइज कर लिया। उससे क्या होगा कि बाय चांस तुम किसी एंट्री में अटके या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, तो तुम वही चीज़ खोल के देख लो। इससे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये तुम पहले भी कर सकते हो, लाइक इस टाइम पे भी, अभी भी तुम अगर पढ़ रहे हो तो रात को सोने से पहले क्या करो कि एक बार माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो कि जो भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है वो तुम्हें याद है या नहीं। ऐसी और भी टिप्स मैंने मेथड्स बताए हैं अपनी वीडियो में, हाउ टू लर्न थ्योरी, ठीक है, वो वाली वीडियो चेक करना, वो बहुत हेल्प करेगी तुम्हें थ्योरी चैप्टर्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में। ओके, सो एक ये चीज़ हो गई, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सब टीचर्स बोलते हैं कि 1-2 दिन पहले से ही तुम्हें नया कुछ नहीं देखना चाहिए, बट मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि पहले पेपर में जाने से आधे घंटे पहले छोड़ दो, शायद तुम्हें हेल्प हो, ठीक है, तुम ज़्यादा एक्टिवली और विदाउट एनी प्रेशर अपना एग्जाम लिख पाओ। Okay, so the step 2 is conquering those golden 15 minutes. I know, you also know that those 15 minutes are the most crucial time, ठीक है, for the 3 hour exams। अगर कुछ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं। इन ये 15 मिनट्स ना तुम्हें पास करा सकते हैं, लिटरली तुम्हें पास करा सकते हैं अगर तुम इसको स्ट्रैटेजिकली सही से प्लान नहीं करोगे, ठीक है। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें तुम्हारे 15 मिनट्स में क्या करना है, तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज यार देखो, समझाने की कोशिश करती हूँ, आराम से सुनो। उन 15 मिनट्स में ना बेसिकली तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अगले 3 घंटे करने क्या वाले हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें अगले 3 घंटे क्या करना है, तो तुम रैंडमली कुछ भी करोगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तुम्हारा पेपर भी छूट सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें उन 3 घंटे में एक्जैक्टली पता है कि मुझे फर्स्ट आवर इतना करना है, सेकेंड आवर इतना करना है और थर्ड आवर इतना करना है, तो वो कितना ईजी हो जाएगा ना। तो कुछ मत करो, ठीक है। इंटर वाले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर पर ध्यान देंगे और फाउंडेशन वाले भी अपना पेपर पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 15 मिनट्स में तुम आराम से अपना पेपर पढ़ सकते हो अगर बहुत लेंदी नहीं है तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो, सब लोग छोड़ दो, फर्स्ट क्वेश्चन मत रीड करना इनमें, क्योंकि वो वैसे भी कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, तो तुम्हें वो अटेम्प्ट करना ही है। हमें इन 15 मिनट्स में जो बाकी क्वेश्चन है ना, उनको पढ़ के ये डिसाइड करना है कि हम एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो छोड़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल नहीं आता या सबसे कम आता है और हम ये छोड़ेंगे, तो तुम एक फ्लो मिल जाएगा तुम्हें कि तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है। पहली चीज़ ये करनी है कि डिसाइड करो विच क्वेश्चन यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपना बेस्ट क्वेश्चन ढूंढो कि इन 4 या 5 क्वेश्चन में से विच इज़ दैट वन क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह आता है, ठीक है, जो तुम्हें 14 से 20 मार्क्स अपने शॉर्ट तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या करनी है, अगर टाइम बचता है, कि एक माइंड में पैटर्न बना लो कि कौन से क्वेश्चन के बाद तुम कौन सा क्वेश्चन करोगे। जैसे कि मान लो अगर 5 क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तुमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो किस सीक्वेंस में करोगे। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना होता है जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह आता है, एग्जामिनर पे अच्छा प्रेशर बनता है कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चे ने बिल्कुल सही करा है, तुम उसमें बिल्कुल सब कुछ सही लिखोगे, तो लाइक इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। दूसरी चीज़, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि हाँ तुमने स्टार्टिंग के आधे घंटे में भी अगर 14 या 20 मार्क्स का पेपर कर लिया, तो तुम्हारे इतने मार्क्स तो सिक्योर हो गए ना, तो तुम बाकी का पेपर अच्छी तरह कर पाते हो। अगर तुम पहला ही क्वेश्चन ऐसे उठा लोगे जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है, वो लाइक बहुत ज़्यादा तुम्हें बहुत स्ट्रेस कर देगा, ठीक है, बहुत पैनिक में आ जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे पूरा पेपर अच्छी तरह। तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्रिपरेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने फील करी है, मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उस बंदी को पूरा पेपर आता था, बट क्योंकि एक तो ये नहीं पता था कि पेपर करना कैसे है, ठीक है, लाइक पहले कौन सा करना है, एंड एक क्वेश्चन ही गलत चूज़ कर लिया। जो क्वेश्चन हमने साथ में पढ़ा था वो बंदी वो क्वेश्चन छोड़ा है गलती से, जिसकी वजह से उसका 40 मार्क्स बनने रह गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत करना, आराम से बैठ के डिसाइड करना। मैं तो बोल रही हूँ 15 के साथ साथ 5-10 मिनट और ले लेना, बट अगर ये चीज़ तुम्हारी फिक्स हो गई ना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होगा तुम्हारा, तो तुम्हारा आगे के जो 1-2 घंटे हैं और वो स्मूथली जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो उनमें भी ये चीज़ अप्लाई करके देखो कि पहले 15 मिनट्स में पेपर पढ़ो, ठीक है, देखो कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, एंड फिर पेपर सॉल्व करना शुरू करो।
ओके, सो द थर्ड थिंग इज मिड एग्जाम ब्रेन फ्रीज. ऐसा होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम, ठीक है, तुम फ्लो में लिख रहे हो, बट सडनली यू फॉरगॉट अ फॉर्मूला, यू फॉरगॉट अ प्रोविजन, लाइक तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए एंड एकदम से एक से पैनिक हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, ये तो आंसर याद ही नहीं आ रहा होता है. ठीक है, ऐसा होता है कि तुम्हें वो चीज़ पता हो सकती है बट एकदम से लिखते लिखते वो एकदम नहीं याद आया, अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हम ना अपने माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि भाई याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें क्या करें. कुछ मत करो, मैं बताती हूँ क्या करो. पेपर बंद कर दो, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना. इधर उधर देख लो, बाहर देख लो रूम से, ठीक है, किसी और की आंसर शीट में मत देखना, बट 1 मिनट के लिए उस क्वेश्चन को भूल जाओ. अगर याद आए तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है. देखो वो सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें वो क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करना हो जाएगा, बट उस पॉइंट तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या चीज़ याद नहीं आ रही, तुम दूसरे क्वेश्चन में जाओगे ना, तो हमारा ब्रेन ना सबकॉन्शियसली बैकग्राउंड में उस क्वेश्चन को लाइक घुमाता रहेगा. हो सकता है तुम्हें पेपर में ही कुछ हिंट मिल जाए, तुम्हें कैसे भी याद आ जाएगा पेपर के एंड तक, बट उस चीज़ में ना अटकना मत, रुकना मत. कोई क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला रह गया, उसको छोड़ दो, ठीक है, जगह छोड़ दो एंड मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना. कुछ भी चीज़ याद करने में 2 4 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, और अपने ब्रेन पे प्रेशर तो बिल्कुल मत डालना, नहीं तो जो भी आता हुआ भी खराब कराओगे. ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा पेपर डिसाइड नहीं कर सकता, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता. ये मेंटालिटी अपने साथ लेके जाना. कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी चैप्टर का हो सकता है जिस चैप्टर को तुमने 10 20 घंटे दिए हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वही क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा, और जिस चैप्टर को तुमने 1 2 घंटे में रिवाइज करा है वो तुमसे बन जाए. ठीक है, सो यू नेवर नो. कभी भी अपने लाइक ये ना ईगो पेपर सॉल्व करते हुए नहीं आनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करना ही है. नहीं हो रहा, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई आके गिफ्ट नहीं देने वाला, कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला अगर तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन तुम्हारा एंटायर पेपर, एंटायर रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा. So that's it for this video. These were all the points that I wanted to share. And जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी कि you are not preparing yourself to clear an exam or to study. You are preparing yourself at this point to become a chartered accountant. ठीक है, इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना. जब भी मोटिवेटेड फील ना हो, जब भी लो फील हो, just keep reminding yourself what you are doing, what it takes to be a CA, and like all the reasons why you wanted to become a CA. These 3 questions ask yourself, and I think तुम कभी भी अपने गोल से हटोगे नहीं. हमेशा you will feel the inner confidence and inner motivation आएगी कि तुम्हें ये क्यों करना है. Always remember one thing, the institute not only tests your knowledge, it tests your patience, it tests your time management, it tests your stress management, how you handle stressful situations, because a CA needs to have these qualities. ठीक है, तुम्हें सिर्फ नॉलेज या बुकिश नॉलेज में बोलूँ होने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तो कैसे काम करोगे. इसलिए नॉलेज के साथ साथ इन सब चीज़ों पे ध्यान दो. ठीक है, कुछ नहीं होता था मुझसे, तो मैं डीप ब्रीथिंग कर लेती थी, मैं तो भगवान का ही नाम लेती थी, मेरे को पूरी हनुमान चालीसा आती है, मैं पेपर के बीच में शुरू हो जाती थी कि भैया ये आंसर याद करवा दो. तो जो भी चीज़ तुम्हारे लिए वर्क करती है, डू इट. ठीक है, सबके लिए अलग हो सकता है. ये नहीं बोल रही कि सब कुछ बैठ के वहाँ पे पूजा शुरू कर देना, नहीं, जस्ट 2 3 मिनट जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just remember one thing, write down in the comment that you are smart and you are capable. You will clear your exam in this attempt. And I am very confident that most of you will come back to this video and will share that yes, they finally did. They finally got a successful in their mark sheet. And I really hope that you all pass. So all the very best. Comment down your thoughts. Okay? Share this video with your friends who are panicking right now, who are in fear, so that they will also calm down a little bit. And I will see you in the next video. Till then, take care and all the very best.